हाय, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज प्रतीक गुप्ता एंड वेलकम टू अनअकैडमी। देखिए, आज का जो टॉपिक हमारे डिस्कशन का होने वाला है कोई स्पेसिफिक टॉपिक नहीं है इकोनॉमिक्स का। आज जो हम बात करने वाले हैं वो हम बात करेंगे कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस के प्रीलिम्स में जो अभी तक आए हैं। तो आज के लेक्चर में मैं 10 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा और कल के लेक्चर में भी अगेन आई विल डिस्कस 10 मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस ऑफ द यूपीएससी आस्क्ड फ्रॉम द इकोनॉमिक्स सेक्शन। एंड देन आफ्टर दैट इफ मोर क्वेश्चंस आर बीइंग लेफ्ट तो हम एक थर्ड लेसन भी करेंगे। एंड देन आफ्टर दैट फिर उन क्वेश्चंस के बारे में बात की जाएगी जो यूपीएससी में अभी तक के सबसे इजीएस्ट क्वेश्चंस आए हैं। ओके, दैट समटाइम यूपीएससी इज बीइंग वेरी वेरी काइंड टू द एस्पिरेंट्स एंड दे आर आस्किंग वेरी सिंपल क्वेश्चंस। तो नॉर्मली हमारा टारगेट है कि हम करीब करीब लास्ट 15 ईयर्स के पेपर्स को टारगेट करें कि उनमें से कैसे क्वेश्चंस टफ आए हैं, कैसे क्वेश्चंस ईजी आए हैं। और उसके बाद हम देखेंगे कि अगर हमें ऐसे भी क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करना है जो मीडियम लेवल, क्योंकि देखिए मीडियम लेवल देयर इज नथिंग सच मीडियम लेवल ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड बाय द यूपीएससी। देयर इज द टफ और दे बीइंग कंपैरेटिवली इजी आई वुड से। ठीक है, तो आज हम 10 क्वेश्चंस के डिस्कस करेंगे। दीज क्वेश्चंस आस्क्ड बाय द यूपीएससी इन द 2013, 14, 15, 16 एंड 17 एंड 18 प्रीलिम्स। ठीक है, तो 5 साल के पेपर हैं, उन 5 साल में से 10 क्वेश्चंस मैंने लिए हैं और बाकी जो 10 क्वेश्चंस हैं हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Now my code is PG UPSC that you can simply use for the purpose of taking admissions in my courses. I've started my the NCERT based course from 8th of September and I'm going to start the next comprehensive batch from 10th of October. Okay. Now about Unacademy, as you know that it is India's largest learning platform, so you can simply join for the purpose of getting the best out of best. Then why you need to choose an academy? Because you know there's 170 plus toppers in 2020 and 178 plus toppers in 2021, rank 3, rank 4, rank 5 and so many other ranks. Then you can simply choose the educator as per your liking, as per your convenience, so simply go for it. Then you can simply follow us on the Telegram channel and moreover the community link of the Unacademy app. Then 20% off is currently going on with the top educators. So you can buy the iconic course for only 95,685 by saving 23,921 rupees. And for the plus courses, you can simply buy for 62,282 for 24 months and you will save around 15,570. So if you want to buy the course, then please use my code PGUPSC. Then from 15th of September, we are going to start the bilingual courses and moreover the Hindi medium course. So if you want to join, you can join. Combat is going on. First 1,000 rank holders will be able to get scholarship up to 50%, 30% and 25% as per the rank. Okay, then test series has been started from 11th of September, so if you want to join you can simply go for it. Now iconic benefit, you know that one-to-one membership, you will get daily answer writing practice and so many other benefits you are going to get. And in case you've been facing any kind of financial difficulty, then you can simply go for the 0% EMI option by calling on the number given on your screen. Okay, नाउ आफ्टर दैट लेट्स कम टू द क्वेश्चन। देखिए, इनमें से जो पहला क्वेश्चन आप देखेंगे दैट इज वेरी मच फेमिलियर टू एवरीवन और आप मान के चलिए जब भी क्लासेस में मैं इकोनॉमिक्स में इन्फ्लेशन का टॉपिक क्लास में डिस्कस करता हूं और डिस्कस करने के बाद मेरा टॉपिक की डिस्कशन खत्म हो जाती है, तब स्टूडेंट्स हमेशा ये क्वेश्चन लेके जरूर आते हैं कि सर हाउ डज दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आंसर्ड इन यूपीएससी, बिकॉज सी this question in 2013 prelims which they asked was totally unexpected and I'm really not sure that on what basis UPSC asked this particular question in the prelims examination. देखिए, पहली बात, इस तरह के क्वेश्चंस में जब बहुत सारे डाउट होते हैं एग्जामिनेशन हॉल के अंदर तो सिंपली तो ये सजेस्ट किया जाता है कि ऐसे क्वेश्चंस को आप छोड़ दें, that you're simply supposed to leave this kind of question because these are very tricky and you won't believe that 99% of the people who are marking the answer of this particular question, they are either marking wrong or they are being simply hitting it like this only because they know they're not going to clear the prelims, so they are being like चल try कर लेते हैं। ठीक है, जो आप मान के चलिए कि 90% of the students who are appearing for the UPSC prelims वो इसी तरह से पेपर अटेम्प्ट करते हैं। जैसे अभी कुछ दिन पहले की बात है, किसी एक स्टूडेंट की मार्कशीट वायरल हो रही थी ऑनलाइन कि द पेपर वॉज अराउंड 720 मार्क्स and he got around minus 720 marks in that because for every question he marked the wrong answer and for every question he was able to get -1. So in that way he was able to score minus 720 score. Now let's come to this kind of questions which are being asked कि इनकी जो इंटरप्रिटेशन होती कैसे है। देखिए, इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पहली बात आपको अच्छी खासी
कॉमर्स की नॉलेज चाहिए, यू नीड टू हैव अ गुड अमाउंट ऑफ नॉलेज ऑफ कॉमर्स, ठीक है। डेटर कौन होता है, बॉन्ड होल्डर कौन होता है। देखिए इन्फ्लेशन तो हम क्लास में हमेशा डिस्कस करते हैं, बॉन्ड होल्डर के बारे में भी हम क्लास में डिस्कस करते हैं, बट जो डेटर नाम का शब्द होता है, जो वर्ड है, वो नॉर्मली क्लासेस में डिस्कस नहीं करते हैं। बट ऐसा क्वेश्चन पूछा जाना, अब देखिए पूछा है तो आंसर तो करना ही है और ये भी बताना है कि आंसर क्या है इसका, ठीक। देखिए दैट यू आर सपोज टू सी फ्रॉम दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, यू आर सपोज टू सी कि ये जो वर्ड होते हैं ये अपीयर कहाँ होते हैं। दीज वर्ड्स आर बेसिकली अपीयरिंग इन दी बैलेंस शीट्स ऑफ द कंपनी। अब देखिए कंपनी की अगर आप बैलेंस शीट की बात करेंगे तो डेटर वो होते हैं जिनसे कंपनी को पैसा रिसीव करना होता है, द वन हु इज सपोज टू पे मनी टू द कंपनी। दैट्स व्हाई दीज पीपल हैव बीन कमिंग ऑन दी asset side. Bond holders are basically those people who have given money to the company and that's why these are being coming to the liability side. ठीक है, तो यहाँ पे आपके हो गए बॉन्ड होल्डर और यहाँ पे हो गए आपके डेटर्स, ठीक है। अब देखिए इन्फ्लेशन से एज यू नो दैट द वैल्यू ऑफ मनी विल गो डाउन। आप अपने आप को रख के सोचिए कि यू आर द पर्सन हु इज सपोज टू पे द मनी बैक टू अ कंपनी और आप उस कंपनी की बैलेंस शीट में एज अ डेटर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। इफ यू नीड टू पे 1,000 रुपीज बैक टू द कंपनी और आपने वो कंपनी को आज नहीं दिए हैं, ओके, एंड यू सेड दैट आई एम गोइंग टू गिव दिस मनी बैक आफ्टर 1 ईयर। उस एक साल में मान लीजिए इन्फ्लेशन हो जाती है 10% की। सो इन दिस केस आफ्टर 1 ईयर व्हेन यू विल गिव 1,000 रुपीज बैक टू द कंपनी, in reality you can say the value of this 1,000 rupee has been reduced by 100 rupee. That means effectively you are paying 900. कहने का मतलब क्या, आप पे तो 1,000 ही कर रहे हैं बट उस 1,000 की जो वैल्यू है मार्केट में वो 900 के बराबर रह गई है। सो थिंक इन दिस वे, अगर आपने टाइम पे किया होता तो कंपनी वॉज एबल टू गेट 1,000 रुपीज and they will be able to buy more goods and services because the value of money was more at that point of time. Now you're paying later on, so in a way the company is receiving the money later on. So in a way, when the company is being able to get money, they are being able to buy goods and services worth of 900. तो कहने का मतलब क्या है, लॉस किसका है, कंपनी का, बट फायदा किसका है, आपका, क्योंकि आपने पैसा बाद में दिया है और उस पैसे की वैल्यू कम हो गई है। गेटिंग? So in this particular way, this particular questions, first option is correct. अब देखिए अगर आप एक बॉन्ड होल्डर हैं, यानी कि आपको जो कंपनी जो है वो पैसा देगी, बिकॉज दिस थिंग, बॉन्ड होल्डर इज वन। बॉन्ड होल्डर कौन होता है, तो कंपनी क्या करती है, जैसे पीस ऑफ पेपर पे लिख के देती है दैट आई नीड टू बोरो 1,000 रुपीज फ्रॉम यू एंड आई विल गिव यू 7% इंटरेस्ट एंड आफ्टर 10 years आई विल गिव यू मनी बैक। तो यानी कि जब आपके 1,000 रुपीज 10 साल के बाद मिलेंगे, इफ द इन्फ्लेशन इज देयर देन सर्टेनली यू कैन से whatever 1,000 rupees you will be get, the value of that money will be quite less at the point of time when you will receive it back. तो कहने का मतलब क्या है, जब आपको 1,000 रुपीज मिलेंगे तो ऑब्वियसली उस पैसे की वैल्यू कम हो गई होगी। सो इन अ वे दैट इज नॉट गोइंग टू बेनिफिट यू, दैट इज गोइंग टू क्रिएट अ लॉस टू यू। गेटिंग? सो इन दिस वे दिस पर्टिकुलर ऑप्शन इज wrong. So what is the right answer? The right answer is A here. समझ पा नहीं पा रहे हैं? तो देखिए अगर आपको नॉलेज अच्छी खासी है, बट मैं आपको बताऊं इवन दोज पीपल हु आर हैविंग गुड नॉलेज ऑफ द कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स, व्हेन दे आर सिटिंग इन द एग्जामिनेशन हॉल एंड व्हेन दे आर गेटिंग सच काइंड ऑफ अ ट्रिकी क्वेश्चंस, देन आई एम टेलिंग यू इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मार्क द राइट आंसर हियर। कई बार ऐसा होता है कि आप जो सोच रहे हैं वो बिल्कुल ठीक होता है और वो एकदम सही आंसर निकल आता है, बट मान के चलिए मेजॉरिटी केसेस में ये होता है कि आप आंसर गलत मार्क करते हैं। तो मैं तो यही कहता हूं कि व्हेन यू हैव दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन व्हिच आर बीइंग वेरी कंफ्यूजिंग, यू आर सपोज्ड टू लीव इट, बिकॉज यहां पे देखिए ऑप्शन एलिमिनेट करने का भी हमारे पास ऑप्शन नहीं बचता है, क्योंकि या तो अगर आपको पता है या तो आपको नहीं पता है। अब मान लीजिए अगर फर्स्ट स्टेटमेंट में आप कॉन्फिडेंट है, सेकंड स्टेटमेंट में आप कंफ्यूज है, फिर भी मान के चलिए आप 50-50% में फंस जाएंगे, ठीक है। सो टोटली अप टू यू। सो आई वुड सजेस्ट कि नॉर्मली दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन सपोज्ड टू बी अटेम्प्टेड व्हेन आपको पता है कि नहीं होने वाला है, तो उस केस में चलो ट्राई कर लेते हैं। गेटिंग? नाउ सी द सेकंड क्वेश्चन, 2014 prelims. The question is what? In the context of Indian economy, which of the following is are the purpose of or purposes of statutory reserve requirement? अब देखिए statutory reserve का मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं
SLR की ही बात की जा रही है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। दैट मीन्स यू नीड टू कीप सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी इन द फॉर्म ऑफ कैश, gold, or you can say government security. Now, when I'm reading these statement 1, 2, 3, 4, then certain statements are being easy and certain statements are being kind of comparatively tough. अब देखिए इस तरह के क्वेश्चंस में चाहे क्वेश्चन टफ है और कई बार कंफ्यूजन होती है कि जो स्टैट्यूटरी रिजर्व रिक्वायरमेंट और जो SLR है वो सेम थिंग है या नहीं है, तो उस केस में देखिए अब हम इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। इफ यू रीड आउट ऑफ दीज फोर स्टेटमेंट यू विल फाइंड the third statement is actually incorrect, which is very easy to find out. To prevent the commercial banks from making excessive profit, जबकि आप जानते हैं ऐसा कहीं किसी भी बुक में नहीं लिखा है कि ऐसा कुछ किया जाता है SLR के थ्रू। So if the third statement is wrong, then I can easily eliminate this. अब देखिए 1 तो दोनों में ही है, so that means 1 is totally correct. Thus, to enable the central bank to control the amount of advances the bank can create, that is totally correct. और आप जानते हैं SLR का एक पर्पस ये भी होता है। Now, to make the people's deposit with banks safe and liquid, देखिए अगर आप RBI की डेफिनेशन के हिसाब से जाएं और अगर आप SLR के पर्पस के पीछे जाते हैं तो आपको मिलेगा that SLR is being created by Reserve Bank of India specifically in case of a country so that the government can borrow money from the banks. Okay, because if you need to keep the money in the form of cash, gold and government security, then out of these three the best option is government securities only, क्योंकि यहाँ पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा if you invest the money। और आप जानते हैं currently 18% of the money the bank need to keep in the form of SLR and that is of the NDTL, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। देखिए हम अपनी क्लासेस में इन सारी टर्म्स के बारे में बेसिक से बात करते हैं सो दैट पीपल आर बीइंग एबल टू अंडरस्टैंड थिंग्स इन अ वेरी सिंपल वे, ठीक है। बट यहाँ पे तो हमें केवल क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करना है। सो देखिए यहाँ पे पॉइंट क्या आता है कि अगर मैं कहता हूं टू मेक द पीपल्स डिपॉजिट विद बैंक सेफ एंड लिक्विड, देन ऑब्वियसली आई विल से इट इज अबाउट लिक्विडिटी फॉर श्योर। ओके, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं बैंक थोड़ा बहुत इसमें से 18% में से कुछ लिक्विड रखता है, बट व्हाट अबाउट द सेफ्टी, देयर इज नो गारंटी अबाउट इट। अब देखिए एनालिसिस करने का मतलब तो ये भी कर सकते हैं कि हाँ सेफ है क्योंकि आपने कैश में रखा है, गोल्ड में रखा है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में रखा है, सेफ तो है, बट द पॉइंट इज व्हाट कि दैट इज नॉट वन ऑफ द पर्पस गिवन देयर। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? Definitely you can say it is one of the thing by which they will be able to meet the day-to-day cash requirement which is being given in the point number 4, बट पॉइंट नंबर 4 तो हमारा यहाँ पे आता ही नहीं है, ठीक है। तो उस केस में मान के चलिए व्हेन यू हैव दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, बिकॉज आई एम टेलिंग यू इन सो मेनी बुक्स एंड द अदर द आंसर हैज बीन गिवन 1 and 2, बट इफ यू रीड द स्टेटमेंट प्रॉपरली देन यू विल फाइंड द आंसर ए इज द करेक्ट वन, बिकॉज सेफ वाला वर्ड हमें कहीं पे भी नहीं मिलता है। और यूपीएससी ने एक बार ये भी क्वेश्चन पूछा था इन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, इफ द SLR विल बी डिसमेंटल्ड then who is going to be the biggest loser here? And the answer was Government of India, because Government of India will not be able to borrow money after that from the banking system to the extent they are being able to borrow currently. Getting? चलिए अब थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। That is one of the question I would say which is one of the most controversial question asked by UPSC. A decrease in the text to GDP ratio of a country indicates which of the following? देखिए जैसे आपको पता टैक्स टू जीडीपी रेशियो का मतलब क्या है कि हाउ मच अमाउंट ऑफ टैक्स इज बी अर्नड बाय गवर्नमेंट डिवाइडेड बाय द जीडीपी ऑफ द कंट्री एंड यू मल्टीप्लाई इट विद 100 एंड व्हाटएवर रेशियो विल कम दैट इज योर टैक्स टू जीडीपी रेशियो। जैसे 2021-22 का अगर मैं रेशियो आपको करेंटली बताऊं, सो दैट इज समवेयर अराउंड 12% इन केस ऑफ आवर कंट्री। ओके, एंड द टैक्स कलेक्शन, नेट टैक्स कलेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज अराउंड रुपीज 14.09 लाख करोड़ रुपीज इज समथिंग विच दे हैव अर्न, जो कि देखिए 2020-21 के मुकाबले द ईयर विच वाज अ कोरोना पेंडेमिक ईयर, द टैक्स कलेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज अराउंड 9.5 lakh crore. Okay, it is somewhere around approximately. So that means the tax was really low in comparison to what they earned the very next year. That means the last year only. अब देखिए ये कह रहे हैं कि डिक्रीज इन टैक्स टू जीडीपी रेशियो का मतलब क्या हो सकता है और ये क्या इंडिकेट करता है। जैसे देखिए अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लेके चलूं, if I'm earning 12 rupees from taxes and the GDP is 100, then my tax to GDP ratio will be 12%. Okay.
वन ऑफ द केस बाय विच यू कैन से द टैक्स टू जीडीपी रेशियो विल गो डाउन इज व्हाट, कि जो अगर मेरे टैक्स 13 हो जाए और मेरा जीडीपी लेट सपोज 110 हो जाए, तो उस केस में क्या होगा, व्हेन आई कैलकुलेट दिस विद 13 डिवाइडेड बाय 110, देन यू कैन से माय टैक्स टू जीडीपी रेशियो विल बी अराउंड 11.8%। या दूसरी तरफ मान के चलिए, अगर मैं कहता हूं कि मेरी इकोनॉमी में कुछ प्रॉब्लम हो गई जिसकी वजह से इमेजिन जो टैक्सेस हैं वो मेरे 10 हो गए और जीडीपी मेरा घट के 100 से 90 हो गया, so in a way you can say again my tax to GDP ratio will be around 11.11%. So in a way it is been going down here, in a way it is been going down here also. That shows that GDP, tax to GDP ratio is going down, but the economy is doing well. And that is also being going down, but that shows economy is not doing well at all because of some sort of issue in the country. अब देखिए, अगर मैं कहता हूं डिक्रीज इन द टैक्स टू जीडीपी रेशियो इंडिकेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग, स्लोइंग इकोनॉमिक ग्रोथ रेट। ठीक है, अब देखिए क्या ये वाकई में ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता है। अब देखिए हमारे एग्जाम्पल में इफ यू हैव सीन दैट वी हैव टेकन द जीडीपी ग्रोथ रेट हियर ऑलमोस्ट 10%, ओके, एंड द टैक्स कलेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट इज बेसिकली इंक्रीज बट नॉट दैट मच, बिकॉज ऑफ विच यू कैन से द रेशियो इज बीइंग गोइंग डाउन। सो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट कम हो रही है, देखिए कोई जरूरी नहीं है ऐसा हो ही हो। So that means the first option is incorrect here. So I can eliminate this and I can eliminate this also. Secondly, if we talk about the option is less equitable distribution of national income. अब देखिए ये जो पॉइंट है मैं कहूंगा कि अगर मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं भी है ना, then still I can mark this option correct because you know this thing that is one of the feature of our economy and that is also being possible when you simply analyze it in the light of this particular question. Why I'm saying this particular thing, imagine अगर यही सिचुएशन लेके चलते हैं, अगर हमारी इकोनॉमी में टैक्स कम हो रहा है, ठीक है, और उस केस में मान के चलिए यहाँ पे हमारा जीडीपी भी कम हो रहा है, then if you remember in the time of corona pandemic the rich people were not impacted a lot, it was mainly the poor people who were impacted, and because of this what happened, as the poor people were impacted a lot, that's why the GDP would decrease but the tax was not impacted that much, because of which you can say this particular option might be correct. We're also having some sort of exceptions here, but the point is that is one of the things where you can simply need to mark that that is the right option. So here the option will be 2 only, okay, as per the demand of the question. Getting what I'm saying? Go for the next one. With reference to the Indian economy, consider the following statements. अब देखिए ये जो क्वेश्चंस है, इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हो इफ यू बेसिकली रेफर दी इकोनॉमिक सर्वे। जो हमारे इकोनॉमिक सर्वे आते हैं जिसमें आपने देखा होगा तो हमारा पहला चैप्टर होता है स्टेट ऑफ द इकोनॉमी। सो इन द स्टेट ऑफ द इकोनॉमी चैप्टर व्हाट यू विल फाइंड दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज बेसिकली गिविंग यू सर्टेन ग्राफ्स कि जीडीपी का ग्राफ क्या है, ग्रोथ का ग्राफ क्या है, अलग अलग सेक्टर्स के ग्राफ क्या है, तो उन ग्राफ से बेसिकली यू विल बी एबल टू नो अ ट्रेंड, अ काइंड ऑफ अ ट्रेंड ओवर देयर। देयर इज नो नीड टू मग अप द नंबर्स ओवर देयर, बट आई एम टेलिंग यू यू विल बी एबल टू गेट सम सॉर्ट ऑफ ट्रेंड ओवर देयर कि ट्रेंड क्या चल रहा है। नाउ इफ यू सी इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ रियल जीडीपी प्रोडक्ट हैज स्टेडली इंक्रीज इन द लास्ट डेकेड। The rate of growth of real GDP has steadily increased in the last decade. So if you see this question was in 2015. पर देखिए अगर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को मैं 2022 के हिसाब से एनालाइज करूं आज बैठ के, तो उसका आंसर क्या होगा? सो वट एवर आंसर आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू दैट इज फ्रॉम करंट पर्सपेक्टिव, नॉट फ्रॉम द ओल्ड पर्सपेक्टिव, बिकॉज यू पीपल आर अवेयर अबाउट टुडे थिंग, यू नॉट अवेयर अबाउट व्हाट हैपेंड इन 2015 एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ रियल जीडीपी हैज स्टेडली इंक्रीज, और आप जानते हैं कि इन आर इकोनॉमी दे टॉकिंग अबाउट द वी शेप रिकवरी, यानी कि रियल जीडीपी ग्रोथ रेट भी हमारी घट गई है। द जीडीपी एट मार्केट प्राइस इन रूपी हैज स्टेडली इंक्रीज इन द लास्ट डेकेड। देखिए उस पॉइंट ऑफ टाइम से ये स्टेटमेंट ठीक थी बिकॉज जीडीपी हर साल बढ़ तो रहा था अगर आप केवल एब्सोल्यूट वैल्यू में देखेंगे, बट अगर आप करंट पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो हमारा जो जीडीपी है, जो करंट मार्केट प्राइस वाला भी, वो भी हमारा कम हो गया है। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? सो इन दिस वे एज पर द करंट सिनेरियो द ऑप्शन इज डी हियर। ओके, तो देखिए क्वेश्चंस को हम टफ क्यों मान रहे हैं? बिकॉज वी आर नॉट बेसिकली रिमेंबरिंग द फैक्ट्स एंड ऑल, बट द पॉइंट इज व्हाट इज द सॉल्यूशन टू आंसर सच काइंड ऑफ क्वेश्चन इफ यू सिंपली रेफर द graphs given in chapter number 1 state of the economy of the economic survey,
given by government of India. Let's go to the next question. With reference to the pre-packaged item in India, it is mandatory to the manufacturers to put which of the following information on the main label as per the फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स पैकेजिंग एंड लैबलिंग रेगुलेशन 2011। ठीक है, अब देखिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर क्या निकल के आता है ये हमें बात करनी है। लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स इंक्लूडिंग एडिटिव्स। आप जानते हैं जब आप लोग कोई भी सामान परचेज करते हैं मार्केट से, तो अगर आपने उसके पैकेट के बैक साइड पे देखा होगा, दैट इज आई एम टेलिंग यू दैट इज ओनली फॉर द सेक बिकॉज यू शुड नो अबाउट इट। ओके, ये क्वेश्चन टफ नहीं है, बट दिस क्वेश्चन बिकम्स टफ बिकॉज ऑफ ignorance of people, I would say. Okay, that people simply ignore such kind of a thing. Now if you see, with reference to the pre-packaged item, it is mandatory to the manufacturer to put which of the following information on the main label as per the Food Safety and Standards Packaging and Labeling Regulation Act 2011. List of ingredients and including additives. कैसा होता है देखते हैं पैकेट खोल के। न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन कैसा होता है देखते हैं। Recommendation if any made by any medical profession about the possibility of any allergic reaction, and then as you can see vegetarian and non-vegetarian. Okay, अब देखिए अगर हम बात करते हैं तो हमें पता है कि पहला वाला पॉइंट तो देखिए होता ही होता है। Okay, so list of ingredients are being given, that means I can eliminate only option number B here. Now as you know that we also need to provide कि वेदर इट्स अ वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन। तो आपको पता होगा, कभी आपने नोटिस किया होगा कि ग्रीन लगा है या फिर वो रेड या ब्राउन टाइप जो होता है वो लगा हुआ है। ग्रीन है तो वेजिटेरियन, ब्राउन है तो नॉन वेजिटेरियन। दैट मीन्स द फोर्थ ऑल्सो नीड टू बी देयर। तो उस केस में क्या है, अगर फोर्थ होना चाहिए तो फोर्थ तो यहाँ नहीं है, सो दैट इज बेसिकली इनकरेक्ट। तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। दैट मीन्स द थर्ड वन इज बेसिकली बीइंग not a part of the information. And then as you can see the nutritional information is also being given कि उसमें कैलोरीज कितने हैं, कार्बोहाइड्रेट्स कितने हैं वो भी दिए होते। तो उसका मतलब क्या है कि ऑप्शन सी जो यहाँ पे होगा हमारा वो करेक्ट होगा। ओके, recommendations are not being given by the medical profession, do remember there might be given that this is what we have as a part of it but that is not being given। तो पॉइंट क्या है, कई क्वेश्चन देखिए यूपीएससी प्रीलिम्स में ऐसे आते हैं जो हमें पढ़ के नहीं सॉल्व करने होते हैं। दैट इज बेसिकली सपोज टू बी पार्ट ऑफ आर व्हाट द पार्ट ऑफ आर नोटिसिंग थिंग। तो इसीलिए जब भी कोई सामान परचेज करें या आसपास आपको कोई चीजें दिखती हैं तो प्लीज उसको नोटिस करना स्टार्ट करें, बिकॉज व्हेन यू नोटिस इट यू विल बी एबल टू नो द राइट इंफॉर्मेशन अबाउट इट। गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। द टर्म कोर बैंकिंग सॉल्यूशन इज समटाइम्स सीन इन द न्यूज। अब देखिए क्या है, जो कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस जो है, मान के चलिए हम कभी बॉदर नहीं करते, ठीक है, बट द पॉइंट इज व्हाट, एज इट वाज आस्क्ड बाय द यूपीएससी, सो दिस क्वेश्चन इज कंसीडर्ड टफ बिकॉज पीपल आर नॉट अवेयर अबाउट इट। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन क्या हम बिना नॉलेज के सॉल्व कर सकते हैं, तो इसका आंसर है यस। देखिए जब आप इन स्टेटमेंट्स को पढ़ेंगे तो इसमें आपको मिलेगा सेकेंड स्टेटमेंट, इट इज एन एफर्ट टू इंक्रीज आरबीआई कंट्रोल ओवर कमर्शियल बैंक थ्रू कंप्यूटराइजेशन। कभी भी आपने देखा है कि आरबीआई कंट्रोल करना चाहता है बैंकों को? नो, आरबीआई इज ट्राइंग टू मैनेज द बैंक। इसका मतलब सेकेंड स्टेटमेंट को पढ़ के एक नेगेटिविटी झलक रही है जो कभी भी आरबीआई और बैंक्स के बीच में रिफ्लेक्ट नहीं होती है। इन दैट केस दिस इज बेसिकली रॉन्ग स्टेटमेंट। तो अगर सेकेंड रॉन्ग है देन आई कैन एलिमिनेट दिस एंड आई कैन एलिमिनेट दिस ऑल्सो। सो आई एम लेफ्ट विथ 1 and 3। अब देखिए यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट तो मेरी करेक्ट है ही है। थर्ड को देखते हैं, इट इज अ डिटेल्ड प्रोसीजर बाय विच अ बैंक विद ह्यूज नॉन परफॉर्मिंग असेट इज टेकन ओवर बाय अनदर बैंक। आप जानते हैं जब ऐसा होता है दैट इज नॉट समथिंग विच इज बेसिकली बीइंग पार्ट ऑफ इट, इट इज बेसिकली समथिंग विच इज नोन एज अ restructuring process in case of banks non-performing asset. Either you're basically selling it to the other bank as a part of SARFAESI Act, or you're being simply selling it to the asset reconstruction company, or in somehow or the other way you're being trying to recover it. That is not something the core banking solution. So under this you can say as the option number 2 is being kind of highly incorrect and the third is also not being kind of correct, but first one when you read it is something which is basically more logical to read here. That's why you can say option number 1 is more correct.
ठीक है। अब देखिए एग्जामिनेशन हॉल में डेफिनेटली टेंशन होती है, आई एम नॉट डिनाइंग इट, बट द पॉइंट इज व्हाट, समटाइम व्हेन यू बेसिकली हैविंग कूल माइंड, जब आप आराम से पेपर करते हैं, देखिए होता क्या है, कई बार पेपर जब बहुत ईजी होता है तो हम बहुत खुश हो जाते हैं, एंड देन व्हाट हैपन, यू वोंट बिलीव, व्हेन यू आर हैविंग सच काइंड ऑफ एन ईजी पेपर, देन व्हाटएवर क्वेश्चन व्हिच आर सिंपल टू मार्क राइटली, यू आर मार्किंग इट रॉन्गली। तो पेपर्स आसान होने का मतलब ये नहीं कि बहुत खुश होकर उसको आप इस तरह से एक्साइटेड हो जाए। इफ द पेपर इज टफ देन देयर इज नो नीड टू बी पैनिक अबाउट इट, बिकॉज इफ यू गेट पैनिक तो जो ठीक होना था वो भी गलत हो सकता है। तो पॉइंट क्या है, यू नीड टू बी काइंड ऑफ काम एंड कंपोज्ड व्हेन इट कम्स टू अटेम्प्टिंग द क्वेश्चंस। गेटिंग? नेक्स्ट पे चलते हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ सेटिंग अप स्मॉल फाइनेंस बैंक इन इंडिया? अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत सिंपल था, बट इसमें जो आपका स्टेटमेंट नंबर 3 है वो बहुत ट्रिकी है। आप जानते हैं व्हेन इट कम्स टू स्मॉल फाइनेंस बैंक, they have a work to simply supply credit to small business unity, because you know this thing, when it comes to priority sector lending target of the small finance bank, that is up to the level of 75% in total. So yes, they need to provide loans to the small business units. That is a correct one. Second is also fine to supply credit to small and marginal farmers, because they also need to provide good amount of branches in the rural areas. Okay, 25% branches, as you know. Now if you see, to encourage young entrepreneurs to set up businesses particularly in the rural areas. कभी भी आपने किसी बैंक को, किसी को भी एनकरेज करते हुए देखा कि जा भैया तू गांव में बिजनेस लगा ले? यू विल नेवर सी। ठीक है, बट देखिए इस पॉइंट में कंफ्यूजन क्या थी, स्टूडेंट्स को क्या लगा, बिजनेस है, नया एंटरप्रेन्योर है तो स्मॉल बिजनेस हो गया, और 25% गांव में लगानी है ब्रांचेस, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं रूरल एरियाज में भी है। So they thought this option is basically correct, and most of the students I'm telling you that year marked this as a right option, but that is not the right one. The right option is basically here 1 and 2 only, because the bank never encourage anyone. The bank only say you can come deposit, you can simply borrow. If I'll find a proposal good, I'll give you money, otherwise no problem. Getting? Next देखिए, consider the following statement. Tax revenue as a percentage of GDP of India has steadily increased in the last decade. Fiscal deficit as a percentage of GDP of India has steadily increased in the last decade. अब इस क्वेश्चन को भी हम 2022 के हिसाब से एनालाइज करेंगे। अब देखिए यहां पे अगर हम बात करें करंट पर्सपेक्टिव में, तो यहां पे भी दिस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन यू विल बी एबल टू गेट इन द इकोनॉमिक सर्वे ओनली। ओके, बिकॉज कौन हर साल का फैक्ट निकाल के देखेगा, कौन हर साल के फैक्ट निकाल के उनको एनालाइज करेगा? दीज थिंग्स आर बीइंग गिवन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इकोनॉमिक सर्वे ओनली। सो इफ यू गो बाय द करंट पर्सपेक्टिव, tax revenue as a percentage of GDP of India has steadily increased in the last decade. You know, it has basically been decreased because of COVID-19 pandemic. And second, also if you see fiscal deficit as a percentage of GDP of India has steadily increased in the last decade. तो देखिए यहाँ पे बहुत ही मिक्स फीलिंग है, क्योंकि देखिए फिजिकल डेफिसिट की अगर आप बात करेंगे तो ये कम हुआ फिर ज्यादा हुआ। सो इट्स नॉट लाइक इट इज बीइंग स्टेडली इंक्रीजिंग, इट इज डिक्रीज एंड देन इंक्रीज। सो इन अ वे दैट इज ऑल्सो रॉन्ग स्टेटमेंट। सो आंसर इज डी है। सो प्लीज 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 इकोनॉमिक सर्वे का पहला चैप्टर आपको ठीक ठाक, अब देखिए इकोनॉमिक सर्वे में क्या क्या पढ़ना होता है ये भी मैं एक वीडियो लेके आऊंगा। आई विल ब्रिंग अ वीडियो अबाउट द इकोनॉमिक सर्वे आल्सो, दैट व्हाट ऑल थिंग्स यू नीड टू रीड इन द इकोनॉमिक सर्वे if you're not going through any lecture, any class, anywhere. That I'll also bring. See the next one. With reference to the governance of public sector banking in India, consider the following statements. Capital infusion into the public sector bank by government of India has steadily increased in the last decade. You know this thing, in case of our country, as the banks have been facing issues a lot, specifically the government bank only. So government of India, if you remember, through the bank recapitalization bonds, moreover by infusing cash, they're simply putting a lot of cash in the bank. So in a way, that is actually a right statement. Okay. Now, second, to put the public sector bank in order, the merger of associate banks with the parent state bank of India has been effective. क्योंकि देखिए सिंपल सी बात है, जब तक बैंक में चीजें लोग बिगड़ी हुई हैं उनको आप ठीक नहीं करेंगे, then how you will be able to do that? Lot of students have thought that this is something which is basically a wrong statement, because you know this thing, when they merged it there was no such problem, but I'm telling you the associate bank was in problem, and the government of India, to first of all they try to make the things better,
and then after that they simply merged it, because you know this thing, no bank will simply accept the other bank with them if there are issues in that particular bank's working. So that's why you can say as that particular point of time, the option C is basically being correct here. Getting what I'm trying to say? Now let's see further. The Reserve Bank of India manages the services Government of India security but not of any state government security. अब देखिए, इन तरह के क्वेश्चन के लिए you need to have a good amount of knowledge about the topic called public debt, जो normally आप मान के चलिए क्लासेस में नहीं कवर किया जाता. Okay, but the point is what, as it is very important, so we've been covering it every year from the examination perspective. The Reserve Bank of India manages service the Government of India security. देखिए, जब हम RBI के functions की बात करते हैं, then they are supposed to manage the security market of both the central government and state governments. So in a way, whatever statement is given the point number 1, that is kind of incorrect here. Treasury bills are issued by the Government of India and there are no treasury bills issued by the state government. Now, that is a correct option, because when we read about the Government of India security and the state government security market, it has been given कि central government can issue security for both short term and long term, while the state government can only issue security for the long term purpose. So that means second is correct, first is incorrect. अगर first incorrect है तो ये गया, और second अगर correct है तो ये रह गया. That is simple. So even if you're not aware about, because मैं सबसे tricky जो term है वो basically third है, because we know what are treasury bills, how the treasury bills are being issued, that is not known to people. And whatever statement has been given here, I'm telling you that is totally correct, because yes, these bills are being issued at a discount by the Government of India in comparison to par value, but they are being redeemed at par here. Getting what I'm saying? So these are the 10 questions, which I brought in today's lecture. Now tomorrow when we're going to meet again, I'll bring you 10 more difficult questions. I'm telling you, those questions are going to be even more difficult, because whatever we have discussed till now, these may or may not be that difficult as per your perspective, but I'm telling you, जिन्होंने पढ़ा है उनके लिए कुछ डिफिकल्ट नहीं है, जिन्होंने पढ़ा नहीं है उनके लिए बेसिक क्वेश्चन भी बहुत डिफिकल्ट है. But whatever question we have been discussing here, that even by the basic preparation done by the people, what kind of questions we can say are being comparatively tough. ठीक है, तो आज की क्लास में चलिए इतना ही. क्लास वाइंड अप करने से पहले, as you know that we have a doubt दरबार that is going on 13 and 27 September. ओके, 13 तो निकल गया है, 14 का भी आपका आज चल रहा है. ठीक है, so 5 PM you can simply tune, and then on September 15 and 29 you can go for polity, current affairs and IR. चलिए, thank you very much, take care, and do remember from 10th of October I am going to start my comprehensive batch. So if you want to learn economics in a very simple way for both pre and mains point of view, please join my course. Timings will be announced soon. Okay, thank you very much, and moreover for more videos about different things, so you can simply tune to my YouTube channel, and you can simply find YouTube channel in the name of Prateek Gupta, and you can simply find me on Telegram also with the help of Indian Economy by IAS by Prateek Gupta, and on Instagram it is Prateek_Gupta_economics. That is how you can simply locate me on different social networking websites. Chaliye, thank you very much, take care and bye bye.